No questions? No, sir. Okay. No, sir. Okay, good. Up today what we are going to start is terms of issue of shares. जो हम shares issue करते हैं उनकी किस तरह से क्या terms होती हैं और उन terms के बेस पर क्या journal entries एक organization अपनी books of accounts में करती है. Now the most important point is that the company which is issuing shares will have to follow certain terms that how do they have to issue the shares. One, secondly, what journal entries they will make when they are issuing shares, right? So firstly, what are the conditions of issues of shares? There are two values, right? Two values or two prices of a share. One is face value. Face value is the nominal value of the share mentioned in the memorandum of association and also in the prospectus, issuing prospectus. Right? In that you mentioned that each share will be of 10 rupees, 100 rupees, 500 rupees, 50 rupees, etc. That is the face value. The second price is issue price. Issue price is usually either more than the face value or it is equal to the face value. In some conditions, it is less than the face value. Now, what is issue at par? Issue at par means when the issue price and face value are equal. The price value that you have mentioned in the prospectus in the memorandum of association of the company, that value is 50 rupees, and your issue price, you are issuing the share also at 50 rupees, that is same. Issue at premium means that your issue price is higher than your face value. 50 रुपए का शेयर है तो you are going to issue that at 70 rupees, 60 rupees, 65 rupees, 55 rupees. तो जो 5, 15 या 10 रुपए हैं, that is called premium, right? Now the third condition is issue at a discount, which is not possible for equity and preference shares just like that. Only for sweat equity shares जो आप अपने staff members को, अपने employees को organization के, right, as a reward देना चाहते हो, in that condition you use the discounted amount. So your issue price is less than your face value. उनको थोड़ा सस्ता देते हो ताकि वो they feel rewarded about working with the company and they feel about the ownership of the company as well. Right? Otherwise, you do not issue shares at discount. You issue shares either at par or at premium. Okay? Now let us just try and understand what are the different conditions in which we will make different entries in the books of accounts. Now, when the company is calling for the full subscription, जब company ने shares को issue कर दिया full subscription के लिए, तो जितने shares आपने issue किए, offer किए, उतने shares के लिए apply कर दिया लोगों ने. So for example, you issued 100 shares, you received 100 applications, right? Or applications equivalent for asking 100 shares. ठीक, 10 applications भी आ सकती हैं, 50 भी आ सकती हैं. कोई आदमी एक शेयर मांगेगा, कोई 2 मांगेगा, कोई 10 मांगेगा. उसके हिसाब से आपने 100 shares issue किए, उन 100 के 100 के लिए application आ गई आपके पास. The second condition is under subscription. Now the number of shares that were issued in the market, you received lesser number of applications. So number of shares are shares applied are less than number of shares issued. Take the third condition is oversubscription. Now this is also very important. You issued 100 shares and you received applications for more than 100 shares. 100 shares के लिए आपने applications मांगी थी, लेकिन आपके पास applications 100 से ज्यादा के लिए आ गई. Oversubscribe हो गया आपका issue, right? तो ये बहुत नॉर्मल कंडीशन है. इफ यू रीड इकोनॉमिक टाइम्स, बिजनेस टाइम्स, जो भी कंपनीज रिसेंटली कुछ एक साल पहले शायद जोमेटो वेंट इनटू इनिशियल पब्लिक ऑफर, दे वर ओवर सब्सक्राइब्ड, राइट? इस तरह से बहुत सी कंपनीज हैं जो सब्सक्रिप्शन के लिए पब्लिक मार्केट में जाती हैं. नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड आर मोर देन नंबर ऑफ शेयर्स इशूड और ऑफर्ड. तो ये जो है ओवर सब्सक्रिप्शन है. नाउ वी हैव स्टडीड कि इशू एट पार, इशू एट प्रीमियम, इशू एट डिस्काउंट, 3 कंडीशंस जिसमें इशू प्राइस आप फाइनलाइज करते हैं, और 3 कंडीशंस जिसमें आपके जो इश्यू है, जो इश्यू ऑफ शेयर्स है, दैट इज फुल्ली सब्सक्राइब्ड, अंडर सब्सक्राइब्ड और ओवर सब्सक्राइब्ड. Now based on that, what are the journal entries that we will make? The first journal entry will be for receiving the application money. जो आपने इनिशियल पब्लिक ऑफर निकाला, उसमें आपने कहा कि 100 शेयर्स हम निकाल रहे हैं, आप इस तरीके का प्रोसेस फॉलो करके अप्लाई करिए. अप्लाई करने के लिए इतनी एप्लीकेशन मनी लगेगी.
So people must have applied. So you have received application money in your account. Now you have to open a separate account. You have to open a bank. मतलब एक बैंक होता है, एक एजेंट होता है, राइट? उसमें एक आप अकाउंट खोलते हैं जिसके अंदर आप शेयर एप्लीकेशन मनी अकाउंट बोलते हैं उस अकाउंट को, राइट? दैट इज अ सेपरेट प्रोसीजर. उस अकाउंट के अंदर पैसा आपका जमा होता है और ये सारी एक्टिविटी ऑडिटेबल एक्टिविटी है. मतलब दिस इज नॉट समथिंग दैट यू कैन डू जस्ट लाइक दैट एंड कोई भी प्रोसीजर फॉलो कर लो. इट्स अ कंप्लीट प्रोसीजर गिवन इन कंपनीज अकाउंट 2013. You have to follow each of those steps, right? So the first entry that you will do is, because you have received the money, bank account debit to equity or preference share application account. अगर equity और preference दोनों type के shares आपने issue किए हैं तो आप bank account debit to equity shares application account लिखेंगे और दूसरी entry करेंगे bank account debit to preference share application account. Or you can do a composite entry as well, that you know. ठीक, तो ये आपकी एप्लीकेशन अकाउंट आपने क्रेडिट कर दिया विद द मनी एंड यू हैव रिसीव्ड द मनी. नाउ अब आपको ऐसे ही इसके नीचे जो है आपका जो नरेशन होती है दैट यू विल राइट. ये ध्यान में रखिएगा, लास्ट टाइम जब मैं पेपर्स चेक कर रहा था, ये बहुत बेसिक फंडामेंटल होता है. जिन्होंने 9th से पढ़ी हो, जिन्होंने 11th से पढ़ी हो कॉमर्स, यू हैव टू ऑलवेज मेंशन अ वेरी ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ व्हाट द एंट्री इज ऑल अबाउट. ठीक है, तो वो आप जरूर लिखिएगा. The second entry is allotment for transferring application money to share capital account, right? अब आपने शेयर कैपिटल में जितनी एप्लीकेशन आई उनको अलॉटमेंट करने के लिए सबसे पहले एप्लीकेशन मनी को उठा करके शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किया. अब इसको आप ध्यान से समझिए. आपने 100 रुपए के लिए कॉल किया, 100 रुपए की शेयर कैपिटल के लिए, आपके पास एप्लीकेशन मनी आ गई. अब आपने जो पहले शेयर एप्लीकेशन अकाउंट बनाया था वहां से पैसे आप उठाएंगे बैंक से और अपनी शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे. डायरेक्टली शेयर कैपिटल में नहीं डालेंगे आप. क्यों? क्योंकि ओवर सब्सक्रिप्शन हो सकता है, अंडर सब्सक्रिप्शन हो सकता है और एग्जैक्ट सब्सक्रिप्शन हो सकता है. सो ऑन अलॉटमेंट व्हाट यू विल डू, फर्स्ट यू विल डेबिट. यहाँ पे जो आपने क्रेडिट किया था इक्विटी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट एप्लीकेशन अकाउंट, उसको आप डेबिट करेंगे और उस अमाउंट को ट्रांसफर करेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट या प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट में. अगर दोनों अलग अलग तरीके के शेयर्स आपने इशू किए हैं तो दोनों अलग अलग तरीके की एंट्रीज आप इसमें करेंगे और उसकी जनरेशन ब्रीफली नीचे मेंशन करेंगे. थर्ड जो एंट्री होगी वो होगी ऑन अलॉटमेंट फॉर मेकिंग ड्यू अलॉटमेंट मनी, राइट? अब जो है अलॉटमेंट के वक्त जो आपको अलॉटमेंट मनी रिसीव हुई है उस एग्जैक्ट मनी को आप यहां पर ट्रांसफर करेंगे. अब देखिए, वो पहले वाली जो थी वो एप्लीकेशन मनी थी, राइट? अब आप अलॉटमेंट मनी रिसीव करेंगे. तो अलॉटमेंट मनी जब आप रिसीव करेंगे तो आप इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट. अब ये देखिए, ये अलॉटमेंट मनी जो आपने रिसीव कर लिया, देखिए जो पहली मनी थी वो एप्लीकेशन मनी थी. 100 रुपए की आपने कॉल करी, 20 रुपए एप्लीकेशन मनी मांगी, लोगों ने 20 रुपए एप्लीकेशन मनी जमा कर दी. अब आपने कॉल किया कि मेरे को अलॉटमेंट मनी चाहिए विच इज 80 रुपीज. आपने फाइनल कर लिया कितने लोगों को आप शेयर्स अलॉट करेंगे, राइट? तो आपने 80 रुपए अलॉटमेंट मनी मांग लिया. अलॉटमेंट मनी ड्यू हो गया, आपके पास आ गया. जैसे ही अलॉटमेंट मनी आपके पास रिसीव हुआ, फोर्थ एंट्री आपने कर दी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट. और इस मनी को आपने ट्रांसफर कर दिया. उल्टा स्टेप लिखा हुआ है, इसको सीधा कर लीजिएगा. ये पहले आएगा अलॉटमेंट मनी, ये बाद में आएगा, राइट? तो बैंक अकाउंट को आपने पहले डेबिट किया, यू रिसीव द अलॉटमेंट मनी एंड देन यू ट्रांसफर द अलॉटमेंट मनी इनटू द शेयर कैपिटल अकाउंट, क्योंकि अल्टीमेटली आप कैपिटल यूज करने वाले हैं इस पूरे प्रोसेस से, राइट? अब अगर आप इन एंट्रीज को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर अलॉटमेंट मनी रिसीव हुआ, क्रेडिट हुआ, यहाँ डेबिट हुआ, तो ये एक तरीके से नलिफाई हो गया, आपके हट गया आपके फाइनल अकाउंट्स में से, नलिफाई होकर के, राइट? बचा क्या? बैंक अकाउंट में कुछ चेंजेस और शेयर कैपिटल अकाउंट बचा. सिमिलरली जब एप्लीकेशन मनी भी आई तो पहले एप्लीकेशन मनी अकाउंट बनाया, उसको यहाँ नलिफाई कर दिया डेबिट करके और मनी डाल दिया शेयर कैपिटल अकाउंट में, राइट? इक्विटी और प्रेफरेंस का आप जरूर ध्यान रखिएगा. नाउ द फिफ्थ एंट्री इज फॉर मेकिंग, बोलिए. यस सर. कॉल मनी के लिए आपने पैसे नहीं बचाए थे. 100 रुपीज का शेयर था, 20 और 80 कर दिया आपने.
हाँ, मैं उस पे भी आ रहा हूँ, ठीक है, आपको समझ में आ रहा है, गुड, वेरी गुड. फॉर मेकिंग ड्यू कॉल मनी और फॉर रिसीविंग ड्यू कॉल मनी, अगेन यू हैव टू फर्स्ट, ड्यू कॉल जब आपने किया तो आपने कह दिया इक्विटी प्रेफरेंस शेयर, जो भी आपका कॉल मनी था उसका नाम आपने अमाउंट मेंशन कर दिया, कॉल अकाउंट डेबिट, और उसको क्रेडिट कर दिया इक्विटी शेयर कैपिटल में. नाउ वंस यू हैव रिसीव्ड द मनी, यू विल ट्रांसफर दैट मनी इनटू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट. ये ड्यू कॉल, सॉरी, ये जब पैसा रिसीव हुआ तो आपने यहाँ पर डेबिट क्रेडिट कर दिया, यहाँ डेबिट कर दिया, ये दोनों अकाउंट्स नलिफाई हो गए कॉल मनी के, और वो कॉल जो बचे हुए पैसे थे जो आपके पास आ गए वो आपने यहाँ पर इसके अंदर ट्रांसफर कर दिए. यहां पर जो आप पैसा अलॉटमेंट मनी को मांग रहे हैं उसको यहां पर कॉल कर रहे हैं, कहां गया, सॉरी, दिस वन, उसको यहां पर आप मांग रहे हैं. जब पैसा आपके पास आ जाएगा, यू विल डेबिट योर बैंक अकाउंट, यू विल रिसीव द मनी इन योर बैंक अकाउंट, यू विल ट्रांसफर दैट इनटू योर प्रेफरेंस शेयर कॉल, जो भी जिस मनी को आप कॉल कर रहे हैं उसके लिए आपने पैसा यहां पर रिसीव कर लिया और उसको आपने ट्रांसफर कर दिया प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट में, क्योंकि अल्टीमेटली यू आर गोइंग टू यूज इट एज प्रेफरेंस और इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट. ठीक. अब यहां पर देखिए कुछ जो स्पेशल नोट्स हैं उस चीज को ध्यान में रखिए. इफ टाइप ऑफ शेयर इज स्पेसिफाइड, इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर, देन वेरियस अकाउंट्स शुड बी नेम्ड अकॉर्डिंगली. अब ये मैंने ऊपर भी आपको बताया था कि अगर आप इक्विटी शेयर के लिए अलग काम कर रहे हैं और प्रेफरेंस शेयर्स के लिए अलग काम कर रहे हैं, दोनों के इश्यूज किए हैं आपने. सो व्हाट यू विल डू इज यू विल क्रिएट सेपरेट अकाउंट्स फॉर इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी, प्रेफरेंस शेयर्स एप्लीकेशन मनी अकाउंट, ये दो अलग अलग होंगे. Similarly, when you go for allotment, you will do preference share allotment money account, preference equity share allotment money account. ऐसे ही जब आप call for जाएंगे for that amount, you will do equity shares call money account अलग और preference shares call money account अलग. These type of accounts will be maintained, right? When there is only one call का मतलब आप allotment एप्लीकेशन के बाद अलॉटमेंट और ड्यू कॉल अलग अलग करने की बजाय एक कॉल करते हैं, दैट यू डिसाइडेड दैट यू वांट टू कॉल द पर्सन फुल अमाउंट इन वन कॉल, तो एप्लीकेशन मनी के बाद जो बैलेंस है आप उसको फाइनल कॉल बोलते हैं. अभी आपने ऊपर जो देखा मैंने आपको फाइनल कॉल के हिसाब से समझा दिया था यहां पर, बट अगर आप एक तरीके से देखें तो ये स्टेप सीधा उठ सकता है. यू कैन डायरेक्टली आस्क फॉर फुल मनी. 20 रुपीज आपने एप्लीकेशन में मांगे, यू कैन स्ट्रेट अवे आस्क 80 रुपीज इन due call. That will not be called due call, that will be called final call, right? अब now final call has one more role to play, उसको भी मैं आपको क्लैरिफाई कर देता हूं. फॉर एग्जाम्पल आपने फाइनल कॉल किया, 80 रुपए मांगे, नहीं आए 80 रुपए, फॉर एग्जाम्पल यू डिड नॉट रिसीव 80 रुपीज, तो क्या होगा, आपने कितने रुपए रिसीव किए, फॉर एग्जाम्पल 50 रुपीज यू रिसीव्ड, नाउ स्टिल 30 रुपीज आर पेंडिंग फॉर द शेयर कैपिटल. देयर आर सम applicants who have not submitted the full amount. So what you will do, you will name the first call as due call, कि money due जो है उसका first call आप करेंगे, पैसा रिक्वेस्ट करेंगे, मान लीजिए उसमें आपको 20 रुपए मिल गए. Then you will go for second call कि अभी भी 10 रुपए पेंडिंग है, तो second call मांगेंगे, right? And then you will go, अगर फिर भी 5 रुपए 6 रुपए 7 रुपए जो भी कुछ पैसा बच जाता है, then you will say final call, right? But that is only when you have not been able to receive the full subscribed portion of the capital. जितने लोगों ने आगे आकर के सब्सक्राइब किया था, अगर सबने पूरा पैसा नहीं दिया है, then comes the first call, second call and final call. Otherwise, अगर पूरा पैसा पहली कॉल में आपको मिल गया, that would be called final call. ठीक है? When first call is final call, then it may be named as share capital, equity share first and final call account बोल सकते हैं. ठीक. Issue of shares at premium. Now there were three conditions that we studied: premium, discount, and the last one was at par. So let us first understand what is premium. So for application money, you know what you will do? There will be a capital and there will be a premium, right? जो भी एप्लीकेशन मनी आएगी उसमें दो पोर्शंस होंगे. एक प्रीमियम होगा क्योंकि आपने इश्यू प्राइस यू हैव केप्ट हायर देन योर फेस वैल्यू, right?
So what you will do, you will create a security premium account and you will credit that amount along with the share capital amount. So what you will say, share application equity या preference share जो भी होगा, that I am not taking name, you just keep that in mind. Share application account debit to share capital account, और उसमें share capital का जो issue price है, सॉरी जो फेस वैल्यू है उसको कैलकुलेट करके आप यहाँ पे लिखेंगे. फॉर एग्जाम्पल 100 रुपए की शेयर कैपिटल आपने रिक्वेस्ट करी थी, राइट, और उसके ऊपर 20 रुपए आपको प्रीमियम मिल गया, सो 120 रुपीज कैपिटल आपके पास आ गई. सो शेयर कैपिटल विल बी क्रेडिटेड विद 100 रुपीज, सिक्योरिटीज प्रीमियम विल बी क्रेडिटेड विद 20 रुपीज, राइट. एंड the narration will clearly say that the money has been transferred to share capital account and security premium account. Please keep that in mind, that security premium amount has to be treated separately because it is a premium value that you are charging for the issue of shares. जो पूरा अमाउंट है इश्यू प्राइस का वो यहां आ जाएगा डेबिट साइड में, ठीक. If the premium is called along with the allotment money, now you have two things to do. अलॉटमेंट मनी के लिए जब आप कॉल करते हैं तो आप शेयर कैपिटल के साथ भी उसको कॉल कर सकते हैं, मतलब अलॉटमेंट के साथ भी कॉल कर सकते हैं, या छोड़ सकते हैं और फाइनल कॉल पे डाल सकते हैं. तो अगर आप साथ में मांगते हैं तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू शेयर सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, और अगेन द अमाउंट्स विल बी द सिमिलर वंस. शेयर कैपिटल जो है वो फेस वैल्यू पे कैलकुलेट होकर आ जाएगी, सिक्योरिटीज प्रीमियम जो है वो प्रीमियम अमाउंट पे कैलकुलेट होकर के आ जाएगी, राइट. इश्यू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम में जो थर्ड कंडीशन है, इफ द प्रीमियम इज डिमांडेड अलोंग विद द कॉल मनी, द एंट्री विल बी डिफरेंट. तो ऊपर वाली जो एंट्री करेंगे आप, यहां पर मान लीजिए आपने प्रीमियम मांगा ही नहीं, एग्जाम्पल, तो यहाँ पे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और केवल जो फेस वैल्यू है उसका कैलकुलेशन आएगा. और कॉल मनी में जब आप जाएंगे तब यहां पर आप डालेंगे सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट. अगर कुछ प्रीमियम आपने ऊपर मांगा है और कुछ प्रीमियम आपने नीचे मांगा है, तो जितना अमाउंट आपने यहां मांगा है वो यहां क्रेडिट होगा, जितना अमाउंट आपने ऊपर मांगा है वो उतना ऊपर क्रेडिट होगा. बस दीज आर मैथमेटिकल कैलकुलेशंस. You have to understand the concept of the entry, but mathematical calculation is equally important because you will have to take care of all these things from the audit purpose, from the company's laws perspective, right? You do not have to breach anything over here. जो पैसा जिस कॉल पर मांगा है तो कॉल वाली एंट्री में आएगा, अलॉटमेंट पे मांगा है तो अलॉटमेंट में आएगा, एप्लीकेशन पे मांगा है तो एप्लीकेशन में आएगा. सिक्योरिटी प्रीमियम विल बी डिफरेंट, शेयर कैपिटल फेस वैल्यू विल बी डिफरेंट, राइट. So this is what is done. सर अगर क्वेश्चन में बाय डिफॉल्ट प्रीमियम बताया नहीं है किस पे मांगा तो कहाँ लेना है? वो आप अलॉटमेंट पे ले लीजिए. अगर क्वेश्चन में अगर कहीं बाई चांस वो नहीं बताते हैं कि कौन से पे उन्होंने कॉल किया है, तो आप सीधे अलॉटमेंट में डालिए उसको, तो कॉल आपकी अपने आप एडजस्ट हो जाएगी, ठीक है. ओके सर. इश्यू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट, ये केवल स्वेट इक्विटी शेयर्स के लिए होता है, हमने डिस्कस किया हुआ है. तो जब आप इश्यू को अलॉट करते, शेयर्स को अलॉट करेंगे, तो आप क्या एंट्री करेंगे? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स अकाउंट. नाउ प्लीज कीप दैट इन माइंड, प्रीमियम इज ऑलवेज अ काइंड ऑफ गेन फॉर यू, डिस्काउंट इज ऑलवेज अ काइंड ऑफ लॉस फॉर यू, क्योंकि आप जो फेस वैल्यू है शेयर की 10 रुपए, उससे कम ले रहे हैं 8 रुपए. You are asking employees to buy shares at 8 rupees in place of 10 rupees, and you are bearing the charge of 2 rupees. So discount is typically a loss for you, right? So what you will do, discount on issue of shares account debit. इसमें भी ध्यान रखिएगा, अगर क्योंकि वो इक्विटी शेयर्स होते हैं यूजुअली, तो स्वेट इक्विटी शेयर्स करके इसके आगे आप अकाउंट में लिख सकते हैं, which will specifically tell us that it is a equity share account, right? To equity share capital account, and the amount will be mentioned. Please keep that in mind. Preference shares नहीं होते हैं ये. तो जब आपके पास एंट्रीज करने के लिए आएंगी तो आप ध्यान से, अगर स्वेट इक्विटी टाइप की कोई एंट्री होती है तो उसको ध्यान से इक्विटी शेयर्स की तरह ही ट्रीट करके एंट्रीज करिएगा बुक्स ऑफ अकाउंट्स में. When issue is undersubscribed, now this is another typical condition, that you called for 100 rupees capital for 100 shares, for example, and people came back, people applied for only 90 shares.
That is what is under subscription. Your applications are not sufficient to reach the goal, right? It may be assumed that minimum subscription has been received and the shares are allotted to the applicants in full. अब minimum subscription clause हम पढ़ चुके हैं कि जब आप shares issue करते हैं तो जो prospectus बनाते हैं उसमें clearly लिखते हैं कि minimum subscription value क्या है, कि अगर आप 100 रुपए के शेयर्स इश्यू कर रहे हैं तो आप बोलते हैं कि 50 रुपए विल बी द मिनिमम सब्सक्रिप्शन. अगर 50 रुपए मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिसीव हो गया एप्लीकेशन के थ्रू, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं विद इशू ऑफ फर्दर शेयर्स. अगर पहले एप्लीकेशन मनी आपने मांगा, उसके अंदर एप्लीकेशन के अंदर आपके पास 100 में से 40 ही आए और आपका मिनिमम सब्सक्रिप्शन 50 है, तो आपका पब्लिक ऑफर फेल हो चुका है. इट विल नॉट बी प्रोसेस्ड फर्दर. तो कंपनी लॉ के अंदर मिनिमम सब्सक्रिप्शन आपको डिसाइड करना होगा कि आपको कितना मिनिमम सब्सक्रिप्शन आपने मांगा है लोगों से प्रोस्पेक्टस के अंदर. वेरी वेरी क्लियर. तो इसलिए इसमें ये लाइन लिखी हुई है कि इट मे बी assumed that the minimum subscription has been received. So whenever you are making general entries, if this portion is not mentioned in the question, then you will assume that the minimum subscription has been done. Entries will be passed for actual number of shares applied and allotted. Right? Why? Because it is undersubscribed. Issue of shares, जब आप you went to the market and you asked for the application, that is an assumptive activity. उसके लिए कोई entry नहीं है. But the entry is when you receive the application money and allotment money and you make a final call or first call, whatever that is. तो जब आपने issue किए shares, तब कोई entry नहीं है, application पर entry. So application money will be taken on actual numbers. ठीक? If the premium is demanded along with the call money, the entry, अरे sorry, क्या ऊपर चला गया क्या? नहीं. Okay. When issue is oversubscribed. Now the second condition is for this, for undersubscribed, you are aware that you have to make the same entries, but the amount should be the actual subscription amount. तब तो हमने प्रीमियम भी देखा था, तब हमने ये भी देखा कि इश्यू में जो है सब्सक्रिप्शन exactly the same. The issue is fully subscribed. 100 shares asked, 100 shares subscribed. People gave applications for all 100. Here people gave applications for 90. तो 90 के हिसाब से आप एंट्रीज करेंगे. अमाउंट विल बी 90 के हिसाब से. प्रीमियम प्रीमियम में जाएगा, शेयर अलॉटमेंट अलॉटमेंट में जाएगा, कॉल मनी में जाएगा, और आप उसको ट्रांसफर करेंगे इक्विटी या प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट में. बट दैट विल ओनली फॉर 90. That will not be for 100 shares because it is undersubscribed. Now, what happens in the condition of oversubscription? First alternative in the oversubscription is that you reject the access applications. The first condition is that you reject the access applications. 100 shares के लिए you made the offer and people gave you 110 applications, 120 applications, right? What you will do is 20 applications you will reject and refund the money back. तो शुरुआत में आपने जो एंट्री करी कि बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट फॉर एग्जांपल, और आपने वहां लिख दिया, मान लीजिए कि शेयर्स जो हैं 50 रुपए के आपने रिसीव किए, अब आप उसमें से 20 रुपए आपको वापस करने हैं. सो व्हाट यू विल डू, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, यू विल रिफंड 20 रुपीस. नाउ योर सब्सक्रिप्शन विल बी इक्वल टू योर अमाउंट ऑफ शेयर्स इश्यूड. 100 हो गया, 20 रुपीज आपने रिफंड कर दिए. सो दैट इज द फर्स्ट entry and first alternative that you will reject. Second alternative, proportionate allotment. Now this is an interesting one. When issue is oversubscribed, applicants may be allotted shares in a fixed proportion. This is called proportionate or pro rata allocation. The proportion depends upon the shares offered and shares applied. अब कितने shares आपने offer किए? 100. How many have been applied? 120. In the case of surplus application, money is adjusted towards sum due on allotted and following entries passed. अब आप देखिए जो आपने proportion money आप यूज करेंगे वो कैसे करेंगे. एप्लीकेशन पर आपको 20 रुपीज आ गए एक्स्ट्रा, तो पहली एप्लीकेशन जो आपकी थी, पहली जो एंट्री थी वो थी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन या प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन 120. दूसरी एंट्री आपने करी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 100 रुपीज
टू इक्विटी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 100 रुपीज ट्रांसफर कर दिए और 20 रुपीज आपने डाल दिया अलॉटमेंट में, राइट? सरप्लस एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। 100 रुपीज तो आपने शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर दिए एप्लीकेशन मनी से, और 100 रुपीज 20 रुपीज आपने यहां डाल दिए, राइट? अब आप आगे गए और surplus application money exceeds even the money due on allotment. Very interesting. अब ये भी हो सकता है कि आपने अगले जो अलॉटमेंट पे 100 रुपए मांगने थे या 50 रुपए मांगने थे, जो एप्लीकेशन मनी थी उसका सरप्लस उससे भी ज्यादा है, उससे भी ज्यादा हो सकता है। तो आप क्या करेंगे? तो आप एक एंट्री पास करेंगे, शेयर एप्लीकेशन मनी अकाउंट को डेबिट करेंगे 100 रुपीज वॉट एवर दैट इज, 120 रुपीज, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में 20 रुपीज डालेंगे, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट जो आप कॉल मनी मांगने वाले थे उस पर आप जो 20-25 रुपए मांगने वाले थे वो अलग क्रेडिट करेंगे, टू बैंक अकाउंट रिफंड, राइट? वो अलग करेंगे। इसका मतलब ये है कि आपके पास अगर बहुत ज्यादा एक्सेस में, माने 100 रुपए के शेयर्स थे, 200 रुपए आ गए आपके पास, एप्लीकेशन 200 रुपए के बराबर की आ गई, तो आपने डिसाइड किया कि 20 रुपए मैं अलॉटमेंट में डाल दूंगा, 30 रुपए मैं कॉल्स इन एडवांस में डाल दूंगा और बाकी 50 रुपए में रिटर्न कर दूंगा। तो इस तरह से आप इसको एडजस्ट करके अगले स्टेजेस में ले आएंगे, राइट? तो शेयर अलॉटमेंट की स्टेज में कुछ पैसे आने आपके पास, तो आपने कुछ लोगों के पैसे उसमें डाल दिए, कुछ एप्लीकेंट्स के पैसे आपने कॉल्स इन एडवांस में डाल दिए, जो आप कॉल करने वाले हो, फाइनल कॉल या फर्स्ट कॉल या सेकंड कॉल, व्हाटएवर इट इज, राइट? व्हेन इश्यू इज ओवर सब्सक्राइब्ड, third alternative is a combination of above two alternatives: rejection plus subscription adjustment on pro rata basis. तो ये देखिए, some of the applications are accepted in full. मान लीजिए आपने फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे डिसाइड किया कि शुरू की जो 50, 60, 100 एप्लीकेशंस थी उनको मैं सबको एक्सेप्ट कर लूंगा फुल। उन्होंने 10 मांगे तो 10 शेयर्स दे दूंगा, उन्होंने 5 मांगे तो 5 दे दूंगा, 1 मांगा तो 1 दे दूंगा। सम एप्लीकेशंस आर रिजेक्टेड, कुछ 5-10 एप्लीकेशंस को आपने रिजेक्ट कर दिया और कुछ 10-20 एप्लीकेशंस को आपने प्रोरेट कर दिया। प्रोरेट का मतलब ये हो गया कि जिसने 10 शेयर्स मांगे उनको आपने 5 दे दिए, जिसने 5 मांगे उन्होंने आपने उनको 3 दे दिए, जिसने 3 मांगे उसको आपने 1 दे दिया। इस तरह से आपने प्रोरेट करके किसी तरह एडजस्ट कर दिया विद इन दैट कैपिटल स्ट्रक्चर। अब ये आप ध्यान रखिएगा, 100 रुपीज के शेयर्स इश्यू किए हैं तो कैपिटल 100 रुपीज की ही रहेगी। ये नहीं होगा कि ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया तो जी मैं अपनी कैपिटल 120 रुपए की कर लूं, 150 रुपए की कर लूं। दैट इज नॉट द पॉइंट, बिकॉज यू आस्क्ड फॉर 100 रुपीज कैपिटल। इफ इट इज प्रीमियम बेस्ड 120 रुपीज, ठीक? तो ये ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया। इश्यू ऑफ शेयर्स एट, अरे फिर ये मैं वहां गलत जगह चला गया, सॉरी। Third alternative, calculation of arrears in case of pro rata allotment. Now, pro rata, when you are doing the allotment, then there will be some arrears. Let us first understand how do we calculate those arrears. Allotment money due on pro rata allottee. अब एक आदमी है, उसने कुछ शेयर्स XYZ मांगे, आपने उसकी बजाय उसको प्रोरेट करके कुछ शेयर्स दे दिए, राइट? तो उसका कुछ अमाउंट होगा, जिस अमाउंट का उसने मान लीजिए 20 रुपए के शेयर्स मांगे, सरप्लस एप्लीकेशन नहीं उसमें से आप कम, उसने कितने, उसको शेयर्स आप कितने दे रहे हैं? 20 रुपए के। उसने आपको पैसे कितने दे दिए? एग्जाम्पल 40 रुपए। तो 20 रुपए सरप्लस एप्लीकेशन मनी है आपके पास। तो इसको आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड माइनस नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड। उसने नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाई किया 10, आपने अलॉट किया 5, राइट? और एप्लीकेशन मनी पर शेयर से उसको मल्टीप्लाई कर दो, तो ये अरियर्स हो गए उसके, ठीक? जो अप्लाई करने वाला था उसके एरियर्स हो गए। उसने अप्लाई किए थे 10 शेयर्स, आपने दिए 5, कितने रुपए का एक शेयर है एज पर अलॉटमेंट एप्लीकेशन मनी? तो एप्लीकेशन मनी मान लीजिए 10 रुपए का शेयर था, आपने 2 रुपए मांगी, राइट? तो 10 माइनस 5 इज 5 इंटू 2 10। तो 10 रुपए जो है उसका एरियर्स का मनी आके आया आपके पास, राइट? तो ये आप इस तरह से कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि द एक्चुअल मनी that will be used for share capital will only be 5 into 2, 10 rupees, and he has given you 20 rupees, right? So 10 rupees you will treat as arrears, call in arrears, right? Allotment money received. अब जो दूसरा
जब आप अलॉटमेंट मनी आता है तब आप क्या कैलकुलेशन करते हैं? तो टोटल अलॉटमेंट मनी ड्यू माइनस सरप्लस एप्लीकेशन मनी माइनस एरियर्स ऑन अलॉटमेंट। अब मैंने जो एग्जांपल दिया उसमें बड़ा इंटरेस्टिंग ये है कि 10 रुपए उसके अभी एरियर के पैसे बचे हुए थे, 10 रुपए उसके एरियर के पैसे बचे हुए थे। अलॉटमेंट मनी मान लीजिए कि आपने 5 रुपए मांगी एग्जाम्पल, तो आपने जो 5 रुपए मांगी उसमें 10 रुपए में से 5 रुपए उसके सरप्लस के ऑलरेडी बचे हुए थे, वो हो गए 5 रुपए, फिर एरियर्स हो गए। सेकेंड कंडीशन ये हो सकती है कि आपने 10 रुपए मांगे थे अलॉटमेंट पे, उसने आपको 10 रुपए दे दिए, आपके पास सरप्लस के पैसे थे, तो अरियर कुछ नहीं बचा। ये एग्जांपल हो सकता है। इट डिपेंड्स ऑन व्हाट इज द अलॉटमेंट मनी दैट यू हैव रिक्वेस्टेड। अगर अलॉटमेंट मनी के बाद देयर आर एरियर्स लेफ्ट फॉर द एप्लीकेंट, देन यू विल ट्रांसफर दैट इनटू योर कॉल फॉर मनी, then you will transfer that into your calls, right? Now this is right issue of shares. Acha, iske andar I would like to mention just one more point. The journal entries will remain the same. Journal entries will not change. Just the amount will change with each of the journal entry. You will keep that in mind, that what money is there in allotment money, how much is left, how much is arrear based. So you keep transferring that money into your calls. ये वाली जो एंट्री है इसको आप करते रहेंगे। अलॉटमेंट के टाइम पर आप कहेंगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एडवांस, राइट? और अगर कॉल के बाद कुछ पैसा बच जाता है, कॉल के बाद भी एरियर बचते हैं, उसने कुछ ज्यादा ही पैसा दे दिया था आपको, सो यू विल डू शेयर कॉल फॉर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, शेयर कॉल मनी फर्स्ट कॉल मनी अकाउंट डेबिट, या फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। आप रिफंड कर देंगे उसका जो एरियर बचेगा। So this entry is a standard entry for all stages, provided that you are still left with arrears. जहां उसके एरियर्स कंप्लीटली प्रोरेट होकर एडजस्ट हो गए, वहां तो आप क्लोज कर देंगे उसको। बट अगर वो फाइनल कॉल के बाद भी उसके पास से कुछ पैसा आपके पास बचा है, तो यू विल रिफंड दैट मनी। ठीक, तो ये जो है, this will be the step. I just wanted to reiterate that. Right issue of shares. Now this is a different kind of concept where further issue of shares to the existing shareholders in the proportion of their holding, right? तो इसमें क्या करते हैं आप कि you give a right issue. राइट इशू का मतलब है कि जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं, अभी जो हम लोग पहले बात कर रहे थे इससे पहले, वो इनिशियल पब्लिक ऑफर है, न्यू पब्लिक ऑफर है टू द पब्लिक एट लार्ज कि आइए और लोग शेयर होल्डर बन जाइए मेरी कंपनी के। Now, right issue of shares is that you are offering the shares to the existing shareholders on the basis of their shareholding, right? Now, the example is कि एक कंपनी है जिसमें मैं, सार्थक और मुकुंद 3 शेयर होल्डर्स हैं, राइट? सो मेरे पास 10 शेयर्स हैं, सार्थक के पास मान लीजिए 50 शेयर्स हैं, और मुकुंद के पास 40 शेयर्स हैं। सो व्हाट इज द रेशियो दैट वी हैव? 1:5:4. दिस इज द रेशियो, राइट? 1 for me, 5 for Sarthak, 4 for Mukund. Now the interesting thing is that my company feels that these 3 shareholders should get more shares. So what they will do, they will issue further shares. मान लीजिए उन्होंने 100 और shares निकाल दिए, but they will allow me to draw the right on those shares as per my proportion, ratio proportion. What is that ratio? 1:5:4. उसमें भी मुकुंद 40 ले सकता है, सार्थक 50 ले सकता है, मैं 10 ले सकता हूं। Until and unless Sarthak and Mukund, they go back to the company and tell them that we want to take 20 shares, rest of the shares you can offer to Amar. That is a different case. But right issue is like this. Accounting treatment is almost the same. You will follow again. In the first place, you will call for the application money. In the second place, you will call for the allotment money. In the third phase, you will call for the call money, the leftover amount. You want to split it in first, second, third call, or you want to just take the whole money in final call, right? These are some of the examples of right shares. But accounting treatment जो entries है वो same है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक? किसी को कोई क्वेश्चन यहां तक पूछना है जनरल एंट्रीज में, तो मैं यहां पर रुक रहा हूं, प्लीज पूछिए।
सर थोड़ा प्रोराटा और डिफाइन कर दीजिए। प्रोराटा किसका? इश्यू ऑफ राइट शेयर्स का कि ऊपर वाला जो आपने न्यू इश्यू पढ़ा है उसका? ऊपर वाला सर। ऊपर वाला, गुड। आपको ऑल्टरनेटिव समझ में आ गए? एक में तो आप रिजेक्ट कर देंगे फुल्ली, यस सर ऑल्टरनेटिव। दूसरे में आप प्रपोर्शन रखेंगे, तीसरे में आप प्रपोर्शन रिजेक्शन दोनों रखेंगे। ठीक, अब इसको ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए कि किसी, मैं एक शेयर होल्डर का एग्जांपल लेता हूं। वन शेयर होल्डर हैज रिक्वेस्टेड फॉर 10 शेयर्स, ठीक, एंड ही हैज मनी फॉर दोस 10 शेयर्स। जो भी एप्लीकेशन के वक्त कॉल की गई, मान लीजिए 2 रुपए के हिसाब से आपने कॉल किया, आपका शेयर 10 रुपए का है। ठीक, मैं एग्जाम्पल पूरा दूंगा। नाउ फॉर एग्जाम्पल, एट द एप्लीकेशन स्टेज यू कॉल्ड फॉर 2 रुपीज, राइट? At the stage of allotment, you will call for 4 rupees, and at the stage of call money, you will go for 6 rupees. ये मान लीजिए आपने 3 stages में अपना share issue of shares खत्म करना था। तो first stage में somebody asked for 10 shares and he gave you 20 rupees because the application money was 2 rupees per share. Now you received 20 rupees, but you realized that this person came last and I cannot allocate 10 shares to him. I can only allocate 5 shares for him. Right? Up now for 5 shares, he has already given you 20 rupees. Right? You have decided that you will give him 5 shares. What is the issue price of 5 shares? 5 into 10, 50 rupees. Right? So now you are going to prorate the amount of 20 rupees submitted by him. What you will do in the first place, when you will do application money, राइट? तो एप्लीकेशन मनी के लिए आपने क्या किया? वो जो जर्नल एंट्री है, लेट अस हैव अ लुक एट दैट जर्नल एंट्री। सॉरी, you debited his application money of rupees 20 and you said share allotment account 10 rupees, calls in advance, sorry, share allotment account 10 rupees, calls in advance है ही नहीं, 20 रुपए तो दिए हैं उसने, आपको चाहिए कितने? 50, क्योंकि आप उसको 5 शेयर्स दे रहे हैं। सो एप्लीकेशन मनी उसके 20 रुपए है और शेयर अलॉटमेंट मनी के आपने 10 रुपए और उसको दे दिए। ठीक, तो आप शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को, जो पैसे आपने 20 रुपए रिसीव किए थे, उसमें से शेयर एप्लीकेशन में आपने 10 रुपए डाल दिए एंड शेयर अलॉटमेंट को आपने 10 रुपए से क्रेडिट कर दिया ही एज एन एडवांस। राइट? अब जब शेयर एप्लीकेशन मनी आ गई तो आपने उसके शेयर एप्लीकेशन मनी के पैसे ट्रांसफर कर दिए इनटू शेयर कैपिटल अकाउंट, अनदर 20 रुपीज। नाउ हिज 20 रुपीज आर फिनिश्ड, you are only giving him 5 shares. In case of 10 shares, he was supposed to give you 100. कॉल मनी के हिसाब से लास्ट में उसको 60 रुपए देने हैं, बीच में उसको 20 रुपए देने, एप्लीकेशन में उसको 20 रुपए देने। तो 20 रुपए में ही उसके 2 स्टेजेस अलॉटमेंट और ये खत्म हो गई। 5 into 2, 5 into 2 खत्म। Now he has to pay how much? 30 more rupees. 6 rupees पर शेयर के हिसाब से जो कॉल मनी है into 5 शेयर्स। तो अब जो कॉल आप वो करेंगे, आप बोलेंगे कि शेयर कैपिटल फाइनल कॉल मनी अकाउंट करके आप क्रेडिट करेंगे 30 रुपए, बैंक अकाउंट डेबिट 30 रुपए, देन यू विल ट्रांसफर दिस मनी इनटू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, इतना समझ में आया? यस सर। बिल्कुल ऐसे ही मल्टीपल केसेस में होगा, right? But you will not get the names of the shareholders, you will just get the numbers of the shareholders, that these many shareholders gave applications, this much amount has been received, this is we are going to adjust। मतलब हम मान लीजिए 120 रुपए हमको आ गए, 20 रुपए हम एडजस्ट करेंगे, 150 रुपए आ गए, 120 हम एडजस्ट करेंगे, 30 रुपए को हम रिजेक्ट करेंगे। रिजेक्शन का बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्राइटेरिया है, that you are going to debit the share application account and you're going to refund the money from the bank account। जो आपने पहले एंट्री करी थी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड अकाउंट 150, you will just pass a reverse entry to say share application money received account debit to bank account 30 rupees, 30 रुपए वापस कर दिया, रिजेक्ट हो गए। और जो 20 आपके पास एडवांस आ गया है, उसको आप या तो अलॉटमेंट में और कॉल्स इन एडवांस में एडजस्ट कर देंगे, व्हाटएवर मनी इज लेफ्ट। प्रोरेट करेंगे आप, जिसको आप पहले, जिसने 10 शेयर्स मांगे थे, 100 रुपए देने थे, उसने उस हिसाब से 20 रुपए दे दिए आपको, बट यू आर गोइंग टू इश्यू हिम शेयर्स ओनली फॉर 50 रुपीज। तो आइडियली उसका
अलॉटमेंट वाला मनी भी आपके पास आ चुका है, तो पहले आप अलॉटमेंट में उसको ड्यू कर देंगे, उसके बाद जब अलॉटमेंट मनी आ जाएगा तो उसको ट्रांसफर कर देंगे शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक, ओके सर। एनी अदर क्वेश्चंस? सर आई हैव अ क्वेश्चन। प्लीज पूछिए। मैंने जहाँ तक पढ़ा है कि अगर हम लोग जैसे शेयर्स अलॉट करते हैं तो, और किसी का हम लोग उसका जो अलॉटमेंट मनी है वो एक्सेप्ट नहीं करते, उसको शेयर्स अलॉट नहीं करते, तो उसका मनी वापस करने में अगर कंपनी को कुछ देर लग जाती है किसी वजह से, कि वो टाइम पे वापस नहीं कर पाता उसका जो अलॉटमेंट का मनी, जो एप्लीकेशन मनी जो आया था, तो उसमें हम लोगों को इंटरेस्ट पे करना है आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। बिल्कुल तो बिल्कुल पे करना पड़ता है। ये जर्नल एंट्री कैसे होएगी, वही पूछना था। इंटरेस्ट की जर्नल एंट्री वेरी सिंपल है। व्हाट इज, अब इफ दिस इज द एंट्री दैट यू आर गोइंग टू मेक, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, राइट? ये तो तब है जब आपने जो स्टिपुलेटेड पीरियड मेंशन्ड है प्रोस्पेक्टस के अंदर, उसके अंदर वापस कर दिए पैसे उसको, ठीक है? हाँ। अब अगर आप नहीं कर पाए वापस तो आप इंटरेस्ट पे करेंगे। सो व्हाट इज इंटरेस्ट फॉर यू? फॉर द कंपनी इंटरेस्ट इज लॉस, राइट? तो इंटरेस्ट ऑन पेंडिंग शेयर एप्लीकेशन मनी अकाउंट डेबिट along with शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो यहां पर एक अकाउंट आप डेबिट करेंगे, यहाँ पे मान लीजिए 10 रुपए उसको वापस करने थे, तो 10 रुपए यहाँ लिखेंगे आप, फिर लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन पेंडिंग शेयर एप्लीकेशन मनी अकाउंट डेबिट, मान लीजिए 2 रुपए इंटरेस्ट है, टू बैंक अकाउंट 12 रुपीज, और उसको रिटर्न कर देंगे। ओके, ठीक है भाई, वेरी सिंपल, इसमें तो कोई सर मुश्किल काम क्रेडिट नहीं है। में टू बैंक अकाउंट आएगा शेयर एप्लीकेशन में। देखिए ये एग्जैक्टली जो शेयर एप्लीकेशन आपके पास एक्सेस में आ गई, आपने उसको रिजेक्ट कर दिया, लेकिन आप उसको रिफंड नहीं कर पाए हैं टाइम से, और टाइम जो है वो स्टिपुलेटेड के पार हो गया है, तो ये तो ऑर्डर है कोर्ट का कि अगर पैसा सब्सक्रिप्शन का पैसा आपके पास पड़ा है, आप टाइम से वापस नहीं कर पाए, तो आप उस पर इंटरेस्ट देंगे। तो एंट्री तो सेम होगी, केवल उसमें एक एडिशनल अमाउंट ऐड होगा इंटरेस्ट का। तो बैंक अकाउंट टू बैंक अकाउंट 12 रुपीज हो जाएगा, 2 रुपए इंटरेस्ट कंपनी के लिए लॉस है तो वो डेबिट साइड में आ जाएगा। बाद में इस इंटरेस्ट वाले अमाउंट को आप ट्रांसफर कर देंगे फाइनल अकाउंट्स में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, राइट? यस सर। ठीक है ना, 2 रुपए वहां चले जाएंगे, एप्लीकेशन मनी आपने रिजेक्ट करके वापस कर दी, तो ये नलिफाई हो गया इस शेयर होल्डर, इस शेयर एप्लीकेशन का पोर्शन, काम खत्म। भाई आइडियली तो पैसे उसी से आए थे, उसी को वापस करने थे आपको, 2 रुपए आपको एक्स्ट्रा देने पड़ गए, करेक्ट? यस सर। एंड सर इफ अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की वजह से पैसे नहीं गए तो वो तो उन्हें पे करने पड़ेंगे, तो उसका तो कंपनी में कोई अकाउंटिंग वगैरह नहीं होगी ना? देखिए ऐसा है कि वजह कंपनी ही होती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वजह नहीं, मतलब जो कंपनीज लॉ है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के किसी जैसे भूल गया वापस करना या कुछ नहीं करना, नहीं तो देखिए, नहीं मैं वही आपको क्लैरिफाई कर रहा हूँ। When a payment is delayed, it is delayed on the behalf of the company. It has nothing to do with who has delayed it. आप समझ, वो कंपनी के अंदर की प्रॉब्लम है। हाँ। आप समझ रहे हैं? फ्रॉम द ऑडिटर्स पर्सपेक्टिव, अगर आप ऑडिटर हैं तो आप ये नहीं पूछेंगे कि अरे किसने डिले कर दिया, वो निकालो भाई, तुम अपनी जेब से दो, वो कंपनी का इंटरनल मैटर है। बट व्हेन यू आर मेकिंग एन एंट्री, द कंपनी हैज डिलेड, द कंपनी हैज टू पे दोस 2 rupees एज इंटरेस्ट टू द एप्लीकेंट, ओके। right? Who delayed the process, who made the mistake is a secondary aspect. That is the internal matter of the company. They will open an internal investigation, they will pick up the person and they will find the person, right? Uski rating खराब करेंगे, वो सब एक internal matter है company का। But if you are an accountant and you are supposed to make journal entries, you will make a journal entry की interest pay करना है 2 रुपए, बात खत्म। कंपनी के अकाउंट से 2 रुपए जाएंगे, ये तो तय है। Who is responsible for these 2 rupees is a different matter. ठीक है जी? ओके सर। Okay. I am not going to teach preparing a cash book. आप लोगों को सबको कैश बुक बनानी आती है, ठीक? उसमें कैश बुक के अंदर बैंक कॉलम भी बनाना आता है, 3 कॉलमर कैश बुक बनती है, राइट? जो भी आप एंट्रीज पूरे शेयर्स में कर रहे हैं, उसमें जहां जहां बैंक अकाउंट का नाम आ रहा है, वो एंट्रीज इस कैश बुक के अंदर आ जाएंगी, राइट? और बैंक अकाउंट के कॉलम के आगे आता जाएगा टू शेयर एप्लीकेशन मनी, टू अलॉटमेंट, बाय फाइनल कॉल, टू फाइनल कॉल, जो भी वो अमाउंट्स होंगे, वो एंट्रीज को आप उठा करके
इसके अंदर कैश बुक के अंदर रिकॉर्ड कर लेंगे, so that you can see that what is the bank account column indicating after having these share capital related transactions. करेक्ट? ठीक है, आपके पास कितना बैंक अकाउंट में पैसा आ गया, कितना चला गया, उसका एक बैलेंसिंग आपको इससे पता चल जाएगा. सो आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट दिस कैश बुक वाला थिंग. मेंटेनिंग अ कंबाइंड अकाउंट ऑफ एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी. एक्चुअली क्या है, कई केसेस में एप्लीकेशन और अलॉटमेंट एक साथ मांग लिया जाता है. कई इश्यूज में जैसे बहुत सारी कंपनीज होती हैं, वो क्या करती हैं कि एक ही अकाउंट ओपन करती हैं बैंक में, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, और सारी की सारी जर्नल एंट्रीज शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट नाम से करती है. बहुत सारी कंपनीज ही करती हैं. लेकिन इसके अंदर क्या है, एक जो सबसे बड़ा नुकसान है मैं बता देता हूं. उसके अंदर मैथमेटिकल कैलकुलेशन का नुकसान हो सकता है, क्योंकि दो अलग अलग अकाउंट नहीं है. कितना एप्लीकेशन में अमाउंट था, कितना अलॉटमेंट में अकाउंट है, कितने, मान लीजिए आपका ओवर सब्सक्राइब हो गया तो कितने रुपए आप प्रोरेट करके ट्रांसफर कर रहे हैं अलॉटमेंट में, कितने ट्रांसफर कर रहे हैं अलॉटमेंट से लेकर के उसमें, इसमें बड़ा भारी कंफ्यूजन हो जाएगा अगर आप दो अलग अलग अकाउंट नहीं बनाते हैं. There is nothing wrong in keeping one account, but this is more beneficial where 100 shares issued, 100 applications received, और आपने सबको अलॉट कर दिया, सब कर दिया, उसमें एक अकाउंट बनाने में प्रॉब्लम नहीं. But the problem is if it is oversubscribed. Under subscription में भी ये प्रॉब्लम नहीं. You received applications only for 90 shares. You can easily do application allotment, right? But in case if it is oversubscribed and you are going to accept oversubscription with proration, यहां गड़बड़ हो जाएगी, यहां गड़बड़ हो जाएगी, right? So you can also take a call when you are making, journal entries, when you get questions. You can also take a call if it is fully subscribed, undersubscribed, you can make one account, share application allotment account. ठीक? Clear? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Calls and arrears, ये more or less हम पढ़ चुके हैं. अच्छा, ये नहीं हमने अभी पढ़ा. देखिए, this is the last portion of this chapter. Calls and arrears का मतलब ये है कि अगर आपने पहला कॉल मांगा फर्स्ट कॉल में या फाइनल कॉल किया, फॉर एग्जाम्पल, जो हम पहला एग्जाम्पल ले रहे थे कि 6 रुपए एक शेयर के थे जो हम कॉल्स में मांग रहे हैं, और आपको कुछ लोगों ने पैसे नहीं दिए, राइट? फॉर एग्जाम्पल 100 शेयर्स के लिए था, 10 रुपए का एक शेयर है, 100 रुपीज की कैपिटल है, आपने 60 रुपए मांगे एंड 50 रुपीज वर पेड और 40 रुपीज वर पेड फॉर एग्जाम्पल. तो जो 20 रुपए बच गए उसको आप नाम देंगे कॉल्स इन एरियर्स, क्योंकि वो पैसे अभी जो एप्लीकेंट शेयर होल्डर था उसने पैसे पे नहीं किए, राइट? या तो अलॉटमेंट पे नहीं किए हैं या कॉल्स पे पैसे नहीं पे किए, किसी एक पे. एप्लीकेशन तो हमेशा जनरली पूरी आ जाती है इफ इट इज ओवर सब्सक्राइब्ड और फुल्ली सब्सक्राइब्ड. इवन इफ इट इज अंडर सब्सक्राइब्ड, 90 शेयर्स का पूरा पैसा आ गया होगा आपके पास. तो अकाउंटिंग कैसे करेंगे? If there is no separate account is maintained for calls and arrears, तो आप क्या करेंगे? Allotment or call money is received, the entry is passed with actual amount received. जो भी अमाउंट आपके पास अलॉटमेंट मनी का आया उसमें आप क्या एंट्री करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, इक्विटी शेयर या प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट. जो भी एक्चुअल मनी आ गया उसको आपने पैसे डाल दिए. Now the second method is that you want to create calls and arrears. कि भाई मैंने पैसे मांगे थे 60, आए 40, 20 रुपए कहां गए? So you have created an amount. What you will do? Bank account debit, right? To application money, allotment money 40. अब जो रह गया calls and arrears उसको आप डेबिट कर देंगे, right? तो टोटल कैसे लिखेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट 40 रुपीज, कॉल्स इन एरियर्स या कॉल इन एरियर्स ब्रैकेट में अलॉटमेंट 20, राइट? टू शेयर मतलब फाइनल कॉल या अलॉटमेंट जो भी वो अमाउंट है उसका टोटल. दैट इज व्हाट इज सेकंड मेथड इफ यू वांट टू क्रिएट एन एडिशनल अकाउंट इन द नेम कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट, राइट? ये देखिए, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट,
अब वो शेयर अलॉटमेंट का है या वो शेयर कॉल का है, वो आप देख लीजिए, फर्स्ट कॉल है, फाइनल कॉल है, थर्ड कॉल है, जो भी पैसा आपका पेंडिंग है वो आप इस तरह से इस अकाउंटिंग एंट्री के थ्रू फिनिश करेंगे. When arrears are received, the company charges interest at a given rate, not exceeding 10% per annum, as per table F of Schedule 1 of Companies Act 2013. ये amendment है 2013 का कि अगर arrears receive होते हैं तो आप 10% per annum से ज्यादा नहीं चार्ज करेंगे, उससे कम भी कर सकते हैं, 5, 4, 3, 2, 1 कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते, आप एक नोटिस दे सकते हैं that we are not charging any interest, but you have a right to charge the interest. ये देखिए, ये सृष्टि, the question that you asked, that if you are delaying the refund you have to pay the interest, if the subscriber, the application subscriber, he is not paying the money on time, he is also liable to pay interest not exceeding 10% per annum. और इंटरेस्ट जब आपके पास आएगा तो आप क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स एंड एरियर्स अकाउंट. आपको मैंने उस वो वाला डेबिट किया था, इंटरेस्ट वाला क्रेडिट कर, बिकॉज यू आर रिसीविंग द अमाउंट. ये जनरली होता क्या है, जब कॉल्स एंड एरियर्स के पैसे आ जाते हैं तो कॉल्स एंड एरियर्स के साथ इंटरेस्ट आता है, तो द एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स एंड एरियर्स, जो अमाउंट आया 40 रुपए या 20 रुपए, प्लस इंटरेस्ट ऑन कॉल्स एंड एरियर्स, मान लीजिए 4 रुपए, तो 24 रुपीज टोटल आपके बैंक अकाउंट में आ गए. 4 रुपए इंटरेस्ट, 20 रुपए कॉल्स एंड एरियर्स. ठीक. कॉल्स एंड एडवांस, amount paid by the shareholder before the due date or call becomes due. अब मान लीजिए कि किसी आदमी ने आपको, जैसा पहले एग्जांपल में भी वी टुक एप्लीकेशन मनी के हिसाब से, एग्जांपल में ये देता हूं कि एप्लीकेशन की स्टेज में किसी ने आपको 10 रुपए के शेयर्स अप्लाई किए और 100 रुपए पूरे दे दिए. एग्जांपल, कोई पैसे तो कितने भी दे सकता है ना अकाउंट में, उसने पूरे 100 रुपए दे दिए. तो व्हेन द कंपनी डिसाइड्स कि ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया, किसको मैं कितने शेयर्स अलॉट करूं, तो जो लोग पहली ही स्टेज में आपको पूरे पैसे दे देते हैं, जनरली कंपनी उनको पूरे शेयर्स दे देती है जनरली, कि भैया इसने तो पहली स्टेज में दे दिए, भाई ये बहुत इंटरेस्टेड है हमारी कंपनी में शेयर्स खरीदने के लिए, ओनर बनने के लिए, इक्विटी शेयर्स के लिए, लेट हिम गिव फुल शेयर्स. ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में ऐसे लोगों को आप पहले फुल्ली कर देते हैं. अब उसने क्या किया, आपको एडवांस में पैसा दे दिया ड्यू डेट से पहले, कॉल या अलॉटमेंट से पहले ही उसने आपको पैसे दे दिए, तो आप क्या एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स एंड एडवांस अकाउंट. राइट. अब आप जिस जिस स्टेज में जाते हुए उसके पैसे को एडजस्ट करते जाएंगे. मान लीजिए somebody paid you 100 rupees instead of 20 at the application stage. तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स एंड एडवांस अकाउंट, यहां पे 100, यहां पे 100. Now, when you will start adjusting that at each stage, you will say calls and advance account debit 20 to share allotment account 20. Share allotment पे आपको 20 rupees चाहिए थे. The second is, आपने उसको फाइनल कॉल किया 60 रुपए का, तो आपने लिख दिया calls in advance account debit 60 to share final call account 60. First and final call account 60. तो ऐसे करके धीरे धीरे करके आप उनका कॉल्स एंड एडवांस का पैसा राइट ऑफ करते चले जा रहे हैं और उसको शेयर्स में ट्रांसफर करते चले जा रहे हैं. शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट से आपने उसको ट्रांसफर कर दिया शेयर कैपिटल अकाउंट में. यहां पर आपने उससे पहले वाली स्टेज में टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को ट्रांसफर कर दिया इक्विटी शेयर्स में, तो उसके पैसे इक्विटी शेयर्स के अंदर ट्रांसफर होते चले जा रहे हैं कैपिटल के अंदर. सो दिस इज व्हाट द ट्रीटमेंट ऑफ कॉल्स एंड एडवांसेस. Another very interesting example, interest on calls in advance. Right. अब इसके लिए भी अधिकार है, company has to pay an interest not exceeding 12% per annum as per the table that has been specified in Companies Act for taking calls in advance. तो जो भी calls in advance आपने ले लिया है, जितने पीरियड के लिए वो पैसा एक्स्ट्रा आपके पास पड़ा रहेगा, जब तक आप अलॉटमेंट मनी नहीं मांगेंगे, फर्स्ट कॉल नहीं करेंगे, सेकंड एंड फाइनल नहीं करेंगे, एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, you will have to pay interest on those. So interest on calls and advance account debit to bank account, that's the very simple entry for paying the interest. Interest is a loss for the company and the money will go out of the bank account. ठीक है, clear?
Yes, sir. Now, this is very interesting kind of an example where a company can issue shares of purchase of an asset or for purchase of business as remuneration to promoters of the company. तो अब जैसे फॉर एग्जांपल आप शेयर्स इशू कर रहे हैं, राइट? उसके बदले में आप जो है एक एसेट ले लें, एक एसेट ले लें और उसको शेयर्स इशू कर दें। भाई एसेट की भी तो कैश वैल्यू है, राइट? ऐसे ही आपने क्या किया, कैश लेने की बजाय कोई एसेट ले ली। तो अगर आप एसेट खरीदते हैं तो क्या एंट्री करते हैं? फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर्स अकाउंट, राइट? अब आपने क्या किया, जनरली ऐसा तब होता है, इन कंडीशंस में होता है जब आप कोई बिजनेस खरीद रहे हो। जब कोई बिजनेस आप खरीद रहे हो, आप एक कंपनी या आप कोई दूसरे बिजनेस को या दूसरे कंपनी को खरीदना चाहते हैं, या उस दूसरी कंपनी के किसी विंग को आप खरीद रहे हैं एग्जांपल, तो आप क्या करते हैं, ये एंट्री करते हैं, फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर्स अकाउंट। वेंडर्स अकाउंट जिस कंपनी से आप वो खरीद रहे हो, और जो अमाउंट होगा वो परचेज कंसिडरेशन होगा। पिछले सेमेस्टर में यू स्टडीड व्हाट इज परचेज कंसिडरेशन, राइट? परचेज ऑफ बिजनेस। तो ये अमाउंट के साथ आप उसको खरीद लेते हैं। ओहो सॉरी, when you purchase the complete business, देखिए पिछले सेमेस्टर में you studied this, I am just reiterating, right? When you purchase the business, you say sundry assets account debit the amount that you are going to have in your books of accounts, goodwill account the amount that you are going to have in your account, against sundry liabilities उसको credit करेंगे आप, क्योंकि वो आप उसको पे करेंगे, those will become liability for you, to vendors account जिसको आप पे करेंगे, जो creditors होंगे आपके accounts में, to capital reserve account। capital reserve account obviously जो capital transfer होके आपके पास आ जाएगी, उसके लिए आप capital reserve account create करते हैं। तो ये जो तीन चीजें आपको दिख रही हैं, these will become liabilities, these three will become your assets in books of accounts when you purchase the business, right? These are some notes. I am not going to repeat them. Why? Because they are already covered in the purchase of business chapter. So मैं उसको जबरदस्ती अभी वापस रिवाइज नहीं करना चाहता. You can just go through this. Very, very simple entries. For issue of shares to vendors. Now जो amount आप vendors के लिए ड्यू कर रहे थे फिक्स्ड एसेट को खरीदते वक्त, अब उस अमाउंट के लिए आपने उसको शेयर कैपिटल इश्यू कर दी, राइट? वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, इक्विटी या प्रेफरेंस जो आप दे रहे हैं उसका नाम आप यहां डाल देंगे, एंड यू हैव इशूड शेयर्स टू द वेंडर। ऊपर आपने एंट्री करी थी फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट, नाउ यू आर डेबिटिंग द वेंडर्स अकाउंट एंड क्रिएटिंग द शेयर कैपिटल फॉर हिम, राइट? इफ यू आर इशूइंग दैट एट द शेयर प्रीमियम, then you will say vendors account debit to share capital account to security premium account। ठीक, डिस्काउंट पे आप इनको इशू नहीं कर सकते हैं, कंपनीज एक्ट केवल स्वेट इक्विटी शेयर्स अलाउ करती है डिस्काउंट पे इशू करना, ठीक है, ओनली टू द एम्प्लॉइज ऑफ द कंपनी। वर्किंग है ये, आई डू नॉट वांट टू गो इनटू द डिटेल्स। फॉर इशू ऑफ शेयर्स टू प्रमोटर्स एज रेम्यूनरेशन फॉर देयर सर्विस, जो जिस बिजनेस को आपने खरीदा उस बिजनेस के जो प्रमोटर्स हैं उनको अगर आप अलाउ करना चाहते हैं कि वो शेयर कैपिटल सब्सक्राइब कर ले, तो गुडविल के अगेंस्ट उनको आप शेयर कैपिटल देते हैं, राइट? एक कंपनी की गुडविल क्या होती है, उसके प्रमोटर्स में होती है, राइट? उसके प्रमोटर्स की गुडविल जो है वो उस कंपनी की गुडविल होती है, तो आप उसकी गुडविल के अगेंस्ट में उसको शेयर कैपिटल इशू कर देते हैं। अब एग्जाम्पल, इसका जो बड़ा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है वो ये है कि अब अमेजॉन के लिए जेफ बेजोस गुडविल है, राइट? बिल गेट्स गुडविल है फॉर माइक्रोसॉफ्ट। सो टू इशू शेयर्स टू देम, अगर मान लीजिए एक बहुत रॉ एग्जांपल ये है कि पेटीएम को कोई कंपनी खरीदती है, तो विजय शेखर शर्मा हु इज दी मैक्सिमम शेयर होल्डर, 30-35% शेयर्स हैं जिसके पास, उस आदमी को आप गुडविल के बेस पर उसको शेयर कैपिटल दोगे, राइट? शेयर्स इशू टू दी प्रमोटर्स, ये हम पढ़ चुके हैं, आई एम नॉट गोइंग इनटू द डिटेल्स। Forfeiture of shares, this is the last portion, ठीक है, of this chapter. I want all of you to go back and study at home what is forfeiture of shares. मैं इससे ज्यादा नहीं कंटिन्यू करूंगा आज. Let me stop recording.